See, in this structure I told you in the previous video that we have two chiral carbon. This is second carbon and third carbon. These both are chiral carbon. Now we will draw, this is the molecule. Now we will draw many stereoisomer of this structure. This is the first stereoisomer, and then we will discuss the structure one by one. We'll draw the Fischer projection of different Fischer projection we'll draw. This is BrOH. Here CH3 group is there. This one is hydrogen. It is first structure. This one is our second structure. Hydrogen, hydrogen and CH3. It is second structure. This is our third structure. OH, Br, hydrogen, hydrogen, and here it is CH3. This is a fourth structure. Here hydrogen, and here Br, and here CH3. These are, by this molecule we can draw this four structure. इस molecule से हम four structure type के draw कर सकते हैं. Okay. Now this is our first structure, this is second structure, this is third structure, and this one is fourth structure, and this one is in the, see, now in this is the first structure. In this structure, these two structure they are mirror image of each other, है ना. ये दोनों मिरर इमेज है ना. अगर यहाँ से हम लोग मिरर ड्रॉ करते हैं तो ये और ये मिरर इमेज है, और ये और ये मिरर इमेज है, और ये जो है ये कायरल मॉलिक्यूल है. क्यों कायरल मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहली बात तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है. उसके बाद हम चेक करेंगे ये जो दोनों कंपाउंड है आपस में मिरर इमेज है, तो ये कायरल कंपाउंड बन गए. ये दोनों कायरल कंपाउंड है. अब ये दोनों कायरल कंपाउंड है, ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल है, तो दिस टू आर इनैंशियोमर पेयर. ये इनैंशियोमर पेयर है. और वैसे ही ये दो भी इनैंशियोमर पेयर है. क्यों? क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है. अगर यहाँ से मिरर ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ से मिरर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक में के मिरर इमेज है. मिरर इमेज है मतलब दिस टू स्ट्रक्चर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, एंड दिस टू स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल. तो दिस टू पेयर आर ऑल्सो इनैंशियोमर. ये दो पेयर भी इनैंशियोमर्स है. ठीक है. ये सबसे पहले ये फॉर्मूला ये लिख दिया मॉलिक्यूल. देन वी कैन ड्रॉ दिस फोर स्ट्रक्चर आउट ऑफ दिस मॉलिक्यूल. कैसे? अगर ये कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया हमारे पास, इफ एनी मॉलिक्यूल इज गिवन टू अस, फर्स्ट चेक हाउ मेनी chiral center आर देयर. वी हैव चेक दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग टू chiral center. अब टू chiral center है मीन्स इट मीन्स वी हैव वन फॉर्मूला 2 raised to the power n. By this formula, n means here n is number of chiral center. 2 raised to the power n. So in this molecule how many chiral center we are having? We are having 2 chiral center. So we are getting 4. It means 4 stereo, STREO isomer. 4 stereo isomer we will from this molecule. इसका मतलब है इस molecule से we will get 4 stereoisomer by using this formula. See, every time we have to use this formula. When we will use this formula, if any molecule is given to us, we have to first check how many chiral center are there. In this 2 chiral center are there. So by using this formula, in place of n we will put 2 and we will get the number of stereoisomer. Now by this formula we know that there are 4 stereoisomers. These are the 4 stereoisomers we got. Okay, in this 4 stereoisomer we have to tell that these two structure they are enantiomer. Why they are enantiomer? क्योंकि ये दोनों mirror image हैं.
mirror image है, and these two pair are also enantiomer because they too are also mirror image. They too are also mirror image. And none of the structure are having plane of symmetry. इसमें से कोई plane of symmetry, किसी में plane of symmetry नहीं है. वो हम लोग सामने एग्जाम्पल लेंगे उसका जिसमें plane of symmetry रहेगा, and then you will understand much better. Okay, at first in this structure these two are enantiomer and these two are enantiomer. लेकिन थर्ड और फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों डायस्टीरियोमर है. ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इन दिस. सबसे पहले 4, दिस आर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आर 4. In this first and second are enantiomer. ये लिख दो फर्स्ट एंड सेकेंड आर enantiomer. फर्स्ट सेकेंड enantiomer है. और थर्ड एंड फोर्थ दे आर ऑल्सो enantiomer. ये भी enantiomer है. ये भी enantiomer है. और एक चीज़, ये दो enantiomer, ये दोनों enantiomer है. ठीक है, इसमें अब ये क्या है, इन दो स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन है, हाइड्रोजन एक साइड में प्रेजेंट है ना. दोनों हाइड्रोजन एक साइड में प्रेजेंट है. इसमें दोनों हाइड्रोजन ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इरथ्रोस. अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में प्रेजेंट है तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इरथ्रो. और इनमें क्या है, इन दो स्ट्रक्चर में दोनों हाइड्रोजन ट्रांसपोजिशन में अपोजिट में प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन. इसका मतलब इसको बोलेंगे हम लोग थ्रियो. ये भी एक नाम देना है. इसका मतलब enantiomer फर्स्ट एंड सेकेंड they are erythro and third and fourth are THREO. से ये जो टॉपिक है इर्थ्रो और थ्रियो, हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाद में ये सेपरेट टॉपिक दिया है तुम्हारे सिलेबस में. सो वी विल डिस्कस दिस टू टॉपिक इर्थ्रो एंड थ्रियो सेपरेटली इन वेरी प्रॉपर वे. ओके, इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. नाउ दिस टू आर थ्रियो एंड दिस टू आर इर्थ्रो. नहीं, दिस आर इर्थ्रो एंड दिस आर थ्रियो. सेम हाइड्रोजन है, इसमें अपोजिट है, हमेशा ऐसे देखते हैं इसको. नाउ व्हाट इज डायस्टीरियोमर? What is distereomer? What is distereoisomer? अब distereoisomer क्या है? In this फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों डायस्टीरियोमर है. डायस्टीरियोमर मतलब अपोजिट स्ट्रक्चर, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो, जिसमें कोई मेल नहीं हो, सिर्फ फॉर्मूला सेम. अब इन सब का क्या, इन सब का फॉर्मूला सेम है. ये जो चारों स्ट्रक्चर है, इन चारों स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम है. फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग है. अब स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये दोनों enantiomer है. अब ये दोनों में देखो, ये दोनों एकदम अपोजिट है, कोई मेल नहीं है इन दोनों में, तो ये डायस्टीरियोमर हो जाएंगे. जैसे ये दो डायस्टीरियोमर है, ये भी थर्ड और फोर्थ ये भी डायस्टीरियोमर है, फर्स्ट और फोर्थ ये भी डायस्टीरियोमर है, ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है. मतलब डायस्टीरियोमर मतलब क्या, फॉर्मूला एक ही है. डायस्टीरियोमर जो enantiomer नहीं है वो डायस्टीरियोमर है ना. जो enantiomer नहीं है वो डायस्टीरियोमर है. ऐसे ये सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड ये enantiomer नहीं है तो ये डायस्टीरियोमर बन जाएंगे. ओके, ऐसे ये दोनों, ये भी डायस्टीरियोमर बन जाएंगे, ये भी डायस्टीरियोमर बन जाएंगे. मतलब जो enantiomer नहीं है वो डायस्टीरियोमर बोलते हैं उनको. फॉर्मूला सेम है, इन सब का फॉर्मूला एक ही है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है. ओके, सो व्हाट डेफिनेशन वी विल राइट फॉर डायस्टीरियोमर. डायस्टीरियोमर इसको लिखेंगे हम लोग, दिस आर कॉन्फिगरेशनल isomer. These are configurational isomers that are not enantiomers
example first and fourth, they are enantiomer. Second and third, they are also enantiomer. Second and fourth, they are also enantiomer. और एक पेयर कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया, सेकेंड एंड थर्ड भी हो गया, एंड सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, ठीक है। ये दोनों सेकेंड एंड, और हाँ और एक है सेकेंड एंड फोर्थ, ये भी डायस्टीरियोमर हो गया। ओके, दिस आर डायस्टीरियोमर। अब वन मोर थिंग इन डायस्टीरियोमर, अब ये जो डायस्टीरियोमर है, ये जो दो डायस्टीरियोमर है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगे। जैसे दो इनएंशियोमर है, दे बोथ विल हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इन दो इनएंशियोमर में, ये दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि ये जो दो कंपाउंड है, वो इट विल चेंज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एक हमने ये कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे ये कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड ले लिया एक, और यहाँ से एक फर्स्ट कंपाउंड ले लिया और यहाँ से एक लाइट पास किए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये पास किए, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एक सेकेंड कंपाउंड ले लिया, इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इट विल मूव द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सपोज ये राइट में मूव करेगा और ये थोड़ा लेफ्ट में मूव करेगा, मतलब ये दोनों कंपाउंड है, दे विल मूव द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट दिस टू कंपाउंड विल बी हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बट इन केस ऑफ डायस्टीरियोमर व्हाट हैपन, डायस्टीरियोमर कहते हैं इन दो कंपाउंड में दे आर हैविंग ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ओनली दे हैव द सेम स्ट्रक्चर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, only they will be having same molecular formula. Okay, so now we'll move further. See definition of enantiomer. You will write like this. Definition: configurational, it is configurational isomer. It is configurational isomers which are non-super imposable mirror images enantiomer have identical physical property and chemical property but enantiomer pair rotate the plane polarized light in opposite direction.